Hello, all the students. Welcome to ACE CAT and all the CAT 2026 aspirants. From now onwards, for the next few months, जब तक कि आप लोगों का CAT complete नहीं हो जाता, make ACE CAT your partner in your studies and you people see how you are going to excel and learn a lot for CAT 2026. Students, my name is Anil Chaudhary and today we are going to have our first session on reading comprehension. In today's class, we will try to understand in what way we people can master our reading skills and in what manner we people can ensure that we excel in CAT. Students, when we talk about CAT, the very first section of CAT is VRC. 24 questions we need to solve in a span of 40 minutes. And students, it is not English, it is actually known as VRC. That means the complete paper is reading oriented. So if a student thinks that, sir, by having a very good command on vocab and by developing a very good command on grammar, I will be able to crack CAT. So sorry to say, this is not the case here. CAT का जो English आता है students, ये basically English होता ही नहीं है. It is always a test of reading comprehension. How much good you people are in reading, and moreover, are you able to compare the various options and are you able to compare the various options and are you able to give the correct answer or not? So that is something which is being tested here. So this whole process is very much interesting, and this becomes the very first class, and every Saturday we are going to take one session live for CAT 2026. And students, it is not only about VRC, but very soon we are going to start our live sessions for Quant also and for DILR also. And if I talk about myself, my name is Anil Chaudhary, and for the last 20 years, okay, almost 2 decades, I have been training the students for CAT. Okay, almost हर section पिछले 20 सालों में पढ़ाने का मौका मिला, but especially my forte is BRC. So in the last 20 years, I have trained thousands of students. I've seen the common mistakes which the students commit, and on the basis of the practical tips, the way the students have improved. On the basis of that same experience, I'll be taking this session and all the coming classes as well. And believe me, students, हम AceCat YouTube channel पर आपको जितना भी देंगे, but उससे बहुत ज़्यादा. Let me tell you, whatever you people are going to get on this AceCat YouTube channel, that is going to be the tip of the iceberg. If you really want to dive into the depth with us, so for that, what is important is you people become the part of our AceCat Mission IIMpossible batch for CAT 2026. Already a few batches we have started, and the latest batch we are going to start the coming week. And इसको लेकर जो भी important updates हैं, you people can install the AceCat application. You can keep visiting icanacecat.com website, and you can explore the various courses available for CAT 2026. Believe me, students, वहाँ पर जितनी डेप्थ के साथ जीरो से लेकर हीरो तक की जो पूरी जर्नी है, जीरो से लेकर जेनिथ तक की जो पूरी जर्नी है, जहाँ पर बहुत फंडामेंटल बेसिक से स्टार्ट करके हम आपको एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे, and CAT level के भी बहुत अच्छे passages we are going to discuss here. Moreover, students, इस CAT के इस first video में, इस first live series में, we people are going to discuss about the nitty-gritty of reading comprehension. मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल beginner हो, CAT के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, and especially VRC को लेकर, you people want to really understand what is the nature of this particular section. So this particular live session is specially for you. And believe me, students, आज जो मैं जितनी बातें डिस्कस करूंगा, you will actually get an opportunity to understand the subtleties and nuances of the VRC section. मैं जानबूझ के कुछ ऐसे phrases यूज करूंगा जो आपको एक्चुअली थोड़ा सा ट्रबल भी करेंगे, बिकॉज मैं जानता हूं कि जिस तरह की इंग्लिश हमको चाहिए और जिस तरह के अच्छी सी vocab भी चाहिए टू अंडरस्टैंड द passages. फॉर दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको ऐसे वर्ड्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल बनाना भी स्टार्ट करता हूँ. तो स्टूडेंट, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. You like it or not, you love it or not, but you will have to read for CAT. So if a student says that, sir, पढ़ने में बड़ा जोर आता है, मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैं जब भी कुछ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, नींद आना स्टार्ट हो जाती है. आई डू बिलीव दैट ऐसा कुछ दिनों तक होगा, पर एक बार कमिटमेंट के साथ अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करो. धीरे धीरे 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स रीडिंग को जोड़ना स्टार्ट करो. And believe me, you will actually fall in love with reading. And students, this is one such addiction which is fantastic. और एक बार ये एडिक्शन हो गया तो दुनिया के बाकी सारे जितने एडिक्शन है वो फीके हो जाएंगे. मार्क माई वर्ड्स.
And moreover, students, when we talk about reading, you people just understand and just try to imagine. IIMs CAT में reading पर focus करते हैं. What is the reason for that? Because even IIMs do understand if you people want to reach heights in your corporate career, reading is important. And at the same time, IIMs, they don't want to test your memory. That is the reason. आप देखोगे डायरेक्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड ग्रामर के रूल्स पर क्वेश्चंस नहीं आते. IIMs आपकी मेमोरी को टेस्ट करना नहीं चाहते. IIMs टेस्ट करना चाहते हैं योर कॉम्प्रेंशन, योर अंडरस्टैंडिंग, योर लॉजिकल एबिलिटी, whether you are able to make out the difference between the subtle options which are given to us or not. So students, आपकी लॉजिक, आपकी लैंग्वेज, आपका कॉम्प्रेंशन, आपकी मैच्योरिटी, ये सभी चीजें CAT टेस्ट करता है. तो यस, यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ CAT एंड देन आपके इसकी पूरी यात्रा में लग जाओ, इस पूरी जर्नी को स्टार्ट करो. एंड स्टूडेंट्स, इस CAT को अपना साथी जरूर बना लेना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज विच आर देयर एंड ऑल द लाइव सेशंस एज वेल एज बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स भी हम लोग यहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं. चलिए, तो आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करूंगा. यस, हाय एवरीवन, जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं. यस, दिस सेशन, यस, ये जो पूरा कोर्स है उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हैं. मैं आपको एक्चुअली थोड़ी सी इनसाइड कोर्स के बारे में दे देता हूँ. यस, रीडिंग कॉम्प्रेंशन का ये पहला सेशन एंड मोreover स्टूडेंट्स, दिस स्लाइड विल गिव यू द कंप्लीट insight about the services which ACE-CAT is going to provide in the mission IIMpossible batch for CAT 2026. 450 hours of live interactive classes. And students, ये classes ऐसी है जहाँ पर आप लोग teachers के साथ audio and at the same time through chat box, you people can connect with the teacher. You people can keep discussing. जो technology हम लोग use कर रहे हैं, that is one of the most latest one, and that will actually help you in being in touch with the teachers real time. इसके अलावा स्टूडेंट, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस यू आर गोइंग टू हैव देयर. कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ क्वांट, DILR and VRC. कंप्लीट क्लासरूम नोट्स यू पीपल आर गोइंग टू गेट एंड CAT एंड OMETS के पास पेपर्स भी हम लोग साथ में सॉल्व करवाते हैं. Thousands of practice questions are there. Hundreds of sectional and topic tests you people are going to have. At the same time, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलेबल टेस्ट सीरीज अक्रॉस इंडिया. WinCat सीरीज इसका नाम है. So 20 mock CATs you people are going to get with complete video solutions. And the best part is same teachers will be giving that video solution as well. आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया, you people can watch the video solutions as well. मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए टेक्स्ट को पढ़ के चीजें समझना थोड़ा सा टफ होता है. इन सब बच्चों के लिए ये वीडियो सॉल्यूशंस बहुत हेल्प करेंगे. And then students, जितनी भी OMETs हैं, I must tell all the students when you are preparing for CAT, don't limit yourself only up to CAT. पर CAT के साथ OMETs को भी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करो. NMAT हो गया, SNAP हो गया, ZAT अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, CMAT इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब OMETs को भी हम लोग इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड देन 1-to-1 mentorship, daily practice problems, okay, we people keep giving that also, and okay, weekly doubt solving sessions and persona prep, जो कि हमारा डेडिकेटेड कोर्स है टू प्रिपेयर यू पीपल फॉर ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू एंड बैच. एंड एनीवन हु इज जॉइनिंग अस फॉर CAT 2026, इफ यू टेक दिस कंप्लीट बैच, ये सब इसी कोर्स का हिस्सा है, अंडरस्टैंड. एंड मोreover कॉलेज कनेक्ट, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे CAT में बहुत अच्छा परसेंटाइल भी लेकर आते हैं, बट दे एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड व्हिच काइंड ऑफ कॉलेजेस दे नीड टू अप्लाई फॉर. एंड कई बार वो डेडलाइंस हम मिस कर देते हैं और कई बार हमें कट ऑफ्स के बारे में भी दे एक्चुअली डोंट नो. So I believe that ACE-CAT का जो कॉलेज कनेक्ट प्रोग्राम है, ये आपको बिल्कुल अपडेटेड रखेगा. एंड वी विल कीप काउंसलिंग एंड गिविंग द गाइडेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स व्हिच काइंड ऑफ कॉलेजेस वी नीड टू अप्लाई फॉर, व्हाट कैन बी द पॉसिबल कट ऑफ्स एंड व्हाट कैन बी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल. सो दैट जब आप इन्वेस्ट करो तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि सर मुझे कितना फीस देना है और क्या मुझे रिटर्न में मिलेगा, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड व्हिच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशंस the college specializes in. इन सबको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में. So what I mean to say is ACE-CAT is not known to just complete the course, it is known to ensure that कोर्स कंप्लीशन के साथ कॉलेज में एडमिशन होने तक okay, हम पूरा साथ निभाते हैं, और यही पिछले 20 सालों में we have been doing. Okay, चलिए अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं.
यस, यहाँ तक तो स्टूडेंट्स एस कैट के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ रीडिंग। नाउ सी, व्हेन वी टॉक अबाउट, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, यस हाय चिराग, यस, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन की एक बहुत ही फेमस लाइन है। He says that the people who don't read good books are no better than the people who cannot read them. जो लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं are no better than the people जो अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते। अंडरस्टैंड, अगर मैं बहुत ही देसी लैंग्वेज में कहूँ तो हम में और गंवारों में कोई फर्क ही नहीं है। हम पढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, और वो बेचारा वैसे ही नहीं पढ़ सकता तो ही डज नॉट रीड। So you people try to understand the difference will get created by reading. पढ़ सकने से डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है, हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, दैट बिकम्स द बिग क्वेश्चन। इसीलिए स्टूडेंट्स, आई नो यू पीपल, मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सब जानते हो कि आप लोग पढ़ तो पाते हो, अंडरस्टैंड, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। और स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, वी पीपल रेयरली टेक इंटरेस्ट इन रीडिंग। हमें लगता है कि सिर्फ टेक्स्ट के लिए, हम टेक्स्ट बुक भी तभी पढ़ते हैं जब कोई एग्जाम और टेस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है रीडिंग शुड बी बियॉन्ड दैट। रीडिंग फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होता है। रीडिंग स्टूडेंट्स आपको कभी बोर नहीं होने देगा, रीडिंग आपको कभी भी नर्वस नहीं होने देगा। यस, थोड़ा सा बिगनिंग चैलेंजिंग होता है, बट मुझे लगता है जिस तरह से हम आपको बताएंगे उस तरह से आप स्टार्ट करो, रीडिंग आपकी बहुत अच्छी होगी। और रीडिंग अगर अच्छी हो गई तो कैट का स्कोर तो वैसे ही बहुत अच्छा हो ही जाएगा। एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि सर कैट का जो आरसी है ना, ये कौन सी बड़ी बात है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल गेम। हमें करना क्या होता है, हमें पैसेज को पढ़ना है, and purely on the basis of that we need to solve the questions. To read the passage and give the answers. So the pattern seems to be very simple, but believe me students, it is not as simple. इस क्लास के एंड में मैं कुछ बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, और इन द कमिंग क्लासेस मैं आपके साथ बहुत अच्छे कैट लेवल के पैसेजेस तक आपको लेकर भी चलूंगा। जब आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कि आरसी को हम जितना सिंपल मानते हैं उतना सिंपल होता नहीं है। So what are the common challenges which a student has to face in RC? Let us try to understand those common challenges now. Now the very first challenge, subject matter being new. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, आरसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक ऑफ द पैसेज। And when I say students topic of the passage, you people do understand with a small example. मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ, स्पेशली बॉयज को देखता हूँ, दे हैव अ कीन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो उन्हें लगता है स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ है वो जल्दी से समझ भी पाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, उनकी स्पीड भी ठीक होती है। वाई? नॉट बिकॉज देयर इंग्लिश इज गुड, बट बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड दे डू हैव प्रायर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, दे आर acquainted with the topic, and that is the reason स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आ जाए, कोई आर्टिकल आ जाए, फटाफट वो बच्चे समझ पाएंगे बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट इन इट। But now students, the same kids, the same students, if they are given a topic on philosophy, अगर मान लो मैं कोई आरसी पैसेज सोशियोलॉजी पर दे दूँ, साइकोलॉजी पर दे दूँ, किसी साइंस के स्टूडेंट के लिए अगर मैं बिजनेस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेज दे दूँ, किसी कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए अगर मैं आरएनए और डीएनए से रिलेटेड पैसेज दे दूँ, आप देखोगे ये बच्चे अब स्ट्रगल करेंगे। Again, not because their English is poor, but because they are not acquainted with the topic. तो स्टूडेंट, सबसे बड़ा चैलेंज है टॉपिक ऑफ द पैसेज। अगर टॉपिक आपके फील्ड का है तो बिलीव मी आप उसे फटाफट समझ भी पाओगे, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी गुड, एंड मोरओवर द आंसर्स व्हिच यू विल गिव विल बी एक्यूरेट एज वेल। बट कई बार स्टूडेंट्स आप देखोगे कैट के पैसेजेस ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट एरिया होता ही नहीं है। अब मान के चले, मैं बच्चों को देखता हूँ साइकोलॉजी से रिलेटेड, वी रेयरली हैव इंटरेस्ट इन दैट। फिलोसॉफी, वी रेयरली हैव इंटरेस्ट इन दैट। क्लाइमेट चेंज, हम इस बारे में पढ़ते ही नहीं, अंडरस्टैंड। तो बिकॉज ऑफ दैट कैट के पैसेजेस थोड़े से टफ हो जाते हैं। सर, व्हाट हैज टू बी डन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। इफ यू आर नॉट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। बट इन केस इफ यू आर रीडिंग but reading a particular genre, so diverse your reading habits. Please ensure that हम varieties of topics को पढ़ना start करें rather than sticking to one particular topic. And students, किन किन topics पर commonly passages आते हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और आज के बाद जब मैं न्यूज़पेपर्स भी पढ़ूंगा, मैं कभी स्पोर्ट्स का कॉलम पढ़ूंगा, कभी मैं शेयर मार्केट की रिपोर्ट पढ़ूंगा, कभी स्टूडेंट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी आर्टिकल को पढ़ूंगा, कभी एआई पर पैसेज पढ़ूंगा, कभी बिजनेस एंड इकोनॉमी पर पढ़ूंगा, और कभी सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी पर।
तो अलग अलग टॉपिक्स पर अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे, you'll become comfortable with all the possible genres which come in CAT, and that is going to boost your confidence. And once a student has spark comes with an ask, yes sir, अब मैं स्कोर कर सकता हूँ सर, अब आंसर आने लग गए हैं, बिलीव मी, बस वहां तक एक टीचर को पहुंचाना है स्टूडेंट्स को, उसके बाद तो यू पीपल बिकम अनस्टॉपेबल। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट मैटर का नया होना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सेकंड, language being incomprehensible. Yes, I do understand. Sometimes the language of the passage is genuinely tough. तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो पैसेज की लैंग्वेज है वो genuinely tough होती है, इट्स नॉट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका एक ही तरीका है, ऐसे बहुत सारे पैसेजेस को पढ़ते रहो, धीरे धीरे वो क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, धीरे धीरे स्टूडेंट्स लेंथी सेंटेंसेस को कॉम्प्रहेंड करना स्टार्ट करो। तो यस, दिस बिकम्स अ चैलेंज, बट देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस। Keep reading, keep practicing, and keep developing your vocab. And students, apply your common sense also. ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जिसकी मीनिंग्स हमको पता नहीं होते हैं, but that does not mean that each and every time I keep looking for the words in the dictionary. What is more important is you people should focus on understanding the meaning of the word in the given context. So apply your common sense. अगर ये वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया तो उसका पॉसिबल मीनिंग क्या होगा। अगर स्टूडेंट्स हम इस तरह से मीनिंग्स को डिड्यूस करके उस पूरे पैसेज को समझना स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं समझता हूँ क्या 2026 यू पीपल डू अंडरस्टैंड टुडे 6 सितंबर एंड वी हैव ऑलमोस्ट 15 मंथ्स ऑफ टाइम विद अस, एंड 15 मंथ्स में तो स्टूडेंट्स पूरा मिरेकल हो सकता है। बच्चे मुझसे पूछते हैं सर क्या 2026 के लिए स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होगा। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम द मोमेंट यू डिसाइड आफ्टर 12 कि सर मुझे कैट देना है, आई थिंक स्टूडेंट्स योर प्रिपरेशन शुड स्टार्ट। And which is the best time to join a coaching institute for it? I believe that September, August, 1 year before. Almost the students किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का 1 ईयर का टाइम जरूर दो। 1 ईयर में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक बहुत अच्छी तरह से आपका सिलेबस पूरा करवा पाएगा। जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन करेंगे 30 जून तक 2026 तक ये सिलेबस विल बी ओवर। See, after that also you will have 5 months of time with us. So those 5 months, you people can solve a good number of tests. You people can revise the concepts. You people can keep practicing a lot of score booster sessions we do take, and a lot of questions we people keep discussing in that. So you will have enough time and opportunity कि आप हमारे साथ खूब सारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। बट यही कोई बच्चा अगर अगले साल जून में ज्वाइन करेगा तो आप देखो हमें कितना फास्ट ट्रैक उस पूरे कोर्स को करना होगा। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरा क्वांट बहुत अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उन्हें तो स्पेशली मेरा एडवाइस है, दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू पीपल शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। So the second challenge is language का टफ होना, and the third important challenge is options being very close. Yes, अब स्टूडेंट जब मैं कहता हूँ options being too close, let me share with you experience given by or experience of so many students. Maximum students, they come to me and they say, sir, among the 4 options we are able to find out, these 2 are not the correct answers. But between the remaining 2 options, we often commit a mistake. And we always tend to mark the wrong answer. Students, why does it happen? For this, you will have to understand the paper setter's psychology first. जो पेपर सेटर होता है ना, वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो जब वो क्वेश्चन पेपर बनाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैट का कोई क्वेश्चन पेपर बनाना है तो व्हाट विल आई डू, मैं कहीं से एक पैसेज लूंगा, आई विल ड्राफ्ट द क्वेश्चन, एंड नाउ स्टूडेंट्स आई विल हैव टू राइट 4 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस तो मैं ऐसे लिखूंगा जिसमें मैं खुद बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। ये वही 2 ऑप्शंस हैं, बट स्टूडेंट्स आर इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर्स। बट जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं उनमें से आई विल राइट 1 करेक्ट आंसर एंड 1 ऑप्शन आई विल राइट इन दिस मैनर व्हिच विल बी वेरी मच अपीलिंग। It will actually appeal the student very much. It will have every possible reason why this option has to be chosen. But one possible minor reason why this option should be rejected. And because students, that option is very much appealing, तो students को लगता है बस that is the right answer. And थोड़ी सी हम लोग जल्दबाजी में होते हैं, थोड़े से स्टूडेंट्स हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, and without critically evaluating that particular option, we straight away mark that as the answer because उस ऑप्शन में वही कीवर्ड्स हैं जो पैसेज में है, मोर और लेस वही लिखा है जो पैसेज में लिखा है, विद अ स्मॉल माइनर चेंज। और कई बार स्टूडेंट्स में देखता हूँ पेपर सेटर
आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करेगा, बट डिस्पाइट यूजिंग द सेम कीवर्ड्स he will actually frame the sentence in this manner that he will completely twist the meaning of the sentence. So this is the kind of mistake okay, which often a student commits. हमें किसी भी ऑप्शन पर जल्दी से जंप नहीं करना है, और जो ऑप्शन हमें बहुत अपील करे उसको लेकर तो एक्स्ट्रा केयरफुल हो ही जाना है. So students, don't ask a question to yourself which option should be selected. Ask a question which option should be rejected and why. तो अगर हम अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिलीव में स्टूडेंट्स एक्यूरेसी डेवलप होगी. और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को चैलेंज देता हूं, यस 100% एक्यूरेसी हमें लेकर चलना है. कि यस पैसेजेस के बेसिस पर जिन बच्चों को लगता है कि सर पैसेजेस में आंसर समझ में आते ही नहीं है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स. हर आंसर के पीछे बहुत स्पेसिफिक लॉजिक है. And when we keep discussing in our classes, we actually give those logics to the students and students get 100% convinced and satisfied also. तो मेरा ये सजेशन है, हम नहीं समझ पाते हैं. That does not mean that RC is confusing. आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, हर एक के पीछे का रीजन देखोगे कि आंसर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, तो मुझे लगता है अपने आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा. And coming on the last challenge, not used to reading. Students जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं रीडिंग में, एंड दैट इज द रीजन ओके हम आरसी में बहुत अच्छा कर नहीं पाते हैं. शुरुआत में कॉन्शियसली ज़बरदस्ती बैठकर हमें थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा, बट ओवर द पीरियड जस्ट विदिन 3-4 weeks you'll become much comfortable in reading. तो स्टूडेंट्स बिकम यूज टू इन रीडिंग. कई बच्चों को लगता है कि सर पैसेज पढ़ना बहुत मेहनत का काम है, और कई बच्चे जो यूज टू हो जाते हैं उनके लिए इट बिकम्स वेरी सिंपल. If I talk about myself, 20 years back when I started taking sessions, मुझे हर सेशन को लेकर बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ता था कि सर इस सेशन में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, बच्चों के क्वेश्चंस क्या होंगे, मुझे आंसर क्या देना है. तो कॉन्शियसली मैं हर सेशन की प्लानिंग करके चलता था. बट अब when 20 years I am so much used to, you people do understand, मुझे कभी भी कोई क्लास लेनी होती है तो ऐसा लगता ही नहीं कि क्लास लेना एक मेहनत का काम है. हम यूज्ड टू हो चुके हैं. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आप लोग भी रीडिंग को लेकर बिल्कुल यूज्ड टू हो जाओ. अंडरस्टैंड ओके, हमें पता ही नहीं चलना चाहिए कब पढ़ाई हो गई. अंडरस्टैंड. और मैं सब बच्चों को कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या वीआरसी कोई कमरा बंद करके 2 घंटे तक सीरियस मूड के साथ एक एक हमें बैठ के पढ़ना है. नहीं, मेक इट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह उठे, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर, 10-15 मिनट हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उसे समझा, उसमें 3-4-5 नए वर्ड्स आ गए, हमने पैरेलल उसका मीनिंग देखा, एक अलग से नोटबुक बनाई और उन वर्ड्स को हमने नोट किया. दैट्स इट. दिन में लंच के बाद एक छोटा सा ऐसे पढ़ लो, रात को डिनर के बाद वापस से 10-15 मिनट रीडिंग में निकाल लो. तो ये 10-15-20 मिनट्स के अगर 2-3 स्लॉट्स आप दिन भर में निकाल पाते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर कैट. इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, चलिए अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पैसेजेस एंड यू पीपल डू अंडरस्टैंड दीज आर द वेरियस जॉनर्स. ओके, एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, जॉनर. ओके, डू यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉनर? जॉनर का मतलब होता है कैटेगरी. कोई भी बुक्स होती है स्टूडेंट्स, वैरायटीज ऑफ कैटेगरीज की बुक्स होती है. यू पीपल डू अंडरस्टैंड. फिक्शन होता है, बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है. सेम इज द केस मूवीज में भी आप देखोगे बहुत सारे जॉनर्स हैं. कोई थ्रिलर होता है, कोई रोमांटिक होती है. ओके, इस तरह की बहुत सारी मूवीज. अंडरस्टैंड. In the same way, if I talk about the passages, there are varieties of genre possible. So business management and economy से related बहुत commonly passages देखे जाते हैं. Science and technology का कम से कम एक RC passage मान के चलना. Biology से related हो सकता है, AI से related हो सकता है, it can be anything. Art and literature बहुत ही important field है, बच्चों को बड़ा जोर आता है इस तरह के passages को पढ़ने में. Sports अपने आप में interesting field है. Philosophy and psychology, very commonly we see passages based on that, on ecology and environment. Okay, so students, climate change, environmental changes, okay, and the various challenges which the earth is facing, इन सब को लेकर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. साइकोलॉजी में आप जनरली देखोगे किसी न किसी एनिमल के बारे में, हर कैट में कोई ना कोई पैसेज जरूर आता है. कभी डॉल्फिन पर आएगा, कभी स्टूडेंट्स आप देखोगे पेंगुइन्स पर आएगा, कभी एंट पर आएगा, कभी एलिफेंट पर आएगा. तो स्टूडेंट्स एनिमल्स पर भी कैट में पैसेजेस कॉमनली देखे जाते हैं. ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. नाउ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. If I talk about the various types of questions, there will be some questions which are direct in nature. Okay, these questions are very simple to answer, and you people can assume that out of 4 questions, possibly 1 or 2 questions will be direct in nature. Okay, you need to just identify where the answer is given in the passage, and you need to manage to give the correct answer. तो ये अपने आप में बहुत टफ नहीं होता, एंड ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं, हालांकि ऑप्शंस कभी कभी हमें थोड़ा सा इसमें उलझा देते हैं. अंडरस्टैंड. Second point, implied answer type questions. Now, these are the questions which will actually trouble us because the answers are not directly given in the passage. We need to understand the passage and we need to deduce the answers. We need to find out. We need to conclude. Let's say, for example, if the questions like, among the 4 options, with which option the author is most likely to agree with which of the options the author is most likely to disagree with. Now, what are these kind of passages? These kind of questions. These are the questions where the answers are not directly given. We will have to read the passage. We will have to understand the ideology of the author. We will have to understand his notion. आखिर वो कहना क्या चाहता है, उसकी बिलीफ क्या है. उसके बाद 4 ऑप्शंस में से हमको आंसर देना पड़ेगा. ऑथर किससे एग्री करेगा, किससे डिसएग्री करेगा. एंड मोर ओवर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वॉट एवर आर्ग्यूमेंट द ऑथर has given in the passage, these arguments are based on what assumption, or whatever the author says in the passage, what do we conclude from that? So these are the questions which are implicit questions, और यही थोड़ी से ट्रबलिंग भी होते हैं. फिर आप देखोगे कई बार आपसे पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई द थीम और एसेंस ऑफ द पैसेज, आइडेंटिफाई द टाइटल, आइडेंटिफाई द टोन एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर. राइटिंग स्टाइल एंड टोन से रिलेटेड पैसेजेस. अब जब मैं राइटिंग स्टाइल की बात करता हूँ, यू पीपल टू अंडरस्टैंड, कभी कोई पैसेज नरेटिव होता है, कभी कोई पैसेज डिस्क्रिप्टिव होता है, कभी कोई पैसेज रिटोरिक होता है, कभी कोई पैसेज एनालिटिकल होता है. Now what are these things? These are the various styles of writing the passages. So we need to understand. Ultimately, a particular passage belongs to which writing style. And students, ये जितनी styles के बारे में मैंने बताया, possibly आपको इनके meanings नहीं भी पता होंगे. But nothing to worry. In the coming classes, we will keep discussing these words. I'll tell you which are the most common styles. And moreover, जो हमारी पूरा कोर्स है, उसमें तो हर स्टाइल पर हम लोग बहुत सारे पैसेजेस की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की जरूर करवाएंगे. और एक और इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन, कभी कभी 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस एंड हर ऑप्शन में 3, 4, 5 वर्ड्स आर गिवन टू अस. और हमसे पूछा जाता है कि व्हाटएवर इज रिटन इन द पैसेज, अगर कुछ कीवर्ड्स में उसको समराइज करना हो, तो व्हिच ऑप्शन summarizes the passage in the best manner. तो हर ऑप्शन में जो कीवर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू पिनपॉइंट एंड फाइंड आउट which combination of keywords is the best summary of the passage. Okay, तो स्टूडेंट्स miscellaneous types के क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा, this passage has been taken from, okay, what is the source of the passage, from where it has been extracted, does it belong to a science journal, does it become a part of a newspaper, does it become a part of a research paper or a book on science. अब आप देखोगे इस तरह के ऑप्शंस हैं, and on the basis of the language of the passage you people will have to understand कि इस तरह का passage generally कहाँ से लिया जाता है और कहाँ मिलता है. अंडरस्टैंड. ओके, एक और बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर अपन अपनी रीडिंग को कैसे डेवलप करें. बट उसके पहले ओके, ये कुछ टोन्स हैं, पॉजिटिव टोन, नेगेटिव टोन. एंड मोरओवर स्टूडेंट्स आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसके पॉसिबली हमको मीनिंग्स ही पता ना हो. तो कई बार आपसे पूछा जाएगा द गिवन पैसेज इज बेस्ड ऑन व्हिच टोन. हालांकि कैट में पिछले कुछ सालों से वी हैवंट सीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस काइंड्स, बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट द ओमेट्स, वहां पर ऐसे क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं. बट स्टिल वी विल हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो मैं जानता हूं कि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स पता नहीं होंगे. But anyway, I want you people, this becomes an assignment for you. You people can pause it, find out the meanings of these words. But in the coming classes, we will keep discussing these words as well. Okay? So these all are positive tones and these are negative words. Right? कितने पता है इनमें से? चलो एक छोटा सा हेड काउंट लेना. आप खुद देखना कि इनमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता है आउट ऑफ 12. Okay? Done. तो स्लोली स्टेडीली अपनी वोकैब को भी स्टूडेंट्स हम लोग इम्प्रूव करना स्टार्ट करें. दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड अब मैं आपके साथ 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा
These will be very simple questions to start with, and I think it becomes a demo for you where you people can actually see where do you stand and whether you are able to capture the essence of the passage or not. बट इसके पहले दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको और दे दूं. जब भी स्टूडेंट्स हम आरसी पढ़ें, यू पीपल हैव टू फोकस ऑन आइडियाज, ओके, नॉट डिटेल्स. माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी पैसेज को पढ़ें, यू पीपल हैव टू फोकस ऑन द आइडियाज, नॉट ऑन द डिटेल्स. कई बार मैं बच्चों को देखता हूं कि हम बहुत फाइन डिटेल्स में चले जाते हैं. कई बार स्टूडेंट्स किसी एजर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, इलस्ट्रेशन दे रखा हो, और हम उस इलस्ट्रेशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि we actually forget what is the main idea and the main purpose of writing the passage. My suggestion to all the students, whenever you read, ask a question to yourself, what is the main idea of the passage? What is the main essence of the passage? What actually the author wants to communicate? What is the main purpose of writing the passage? That is what we need to understand. तो कई बार फाइन डिटेल्स में उलझ जाते हैं, उससे बचना है. हाँ, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर उस पर बेस्ड है तो ठीक है, उस समय हम लोग उसको डेप्थ में पढ़ें, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सेकेंड पीस ऑफ एडवाइस विल बी, स्टूडेंट्स जब भी हम किसी आरसी पैसेज को सॉल्व करें, प्लीज इंश्योर दैट हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज. व्हाट वी पीपल कैन डू इज वी कैन एक्चुअली हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चंस फर्स्ट. आप एक बार क्वेश्चंस को फटाफट देख लो and then understand what kind of questions are there. Okay, what are the keywords and what things we need to keep in mind. I believe that this will help you to save time. Otherwise, students पूरा passage पढ़ के फिर questions पर आना और फिर passage पे जाना. So that becomes time consuming. Okay, so please understand. Have a look over the questions first. तीसरी important चीज, the first para and the last para. That plays the most important role, but that does not mean कि हम लोग बीच में ऐसे ही पढ़ लें. अंडरस्टैंड, मैं कई बार ट्यूटर्स को भी देखता हूँ और कई स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ, दे से दैट कि सर हमारे पास टाइम कम होता है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द कंप्लीट पैसेज और इंस्टेड ऑफ रीडिंग द पैसेज थरोली, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्किम द पैसेज. स्किमिंग का मतलब होता है जैसे दूध में से मक्खन निकालना. अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, केवल कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्राई टू बिल्ड अप an idea of the passage. But students, until and unless you're very good in skimming, I would appreciate, it is always advisable to have a thorough reading of the passage. And when you people are preparing for CAT 2026 and when you people have enough time with you, don't be in a hurry right now. अभी आपका एक ही गोल होना चाहिए, detailed understanding and accurate answers. तो कहीं पर भी आप लोग अभी स्किमिंग पर फोकस ना करें. अभी पूरा पैसेज पढ़ना है. आपको 10 मिनट्स लग रहा है, 15 मिनट्स लो. आपको 15 लग रहा है, आप 20 मिनट्स लो, बट थरोली. और एक ही गोल रखो कि हर क्वेश्चन का आंसर आई शुड बी एबल टू गिव करेक्टली. Unless I get convinced with a particular answer, I will not mark it. So in this manner, you people have to eventually work. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट पूरा पैसेज पढ़ना चाहिए. फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको दो चीजें पता चलेगी. What is the topic of the passage, and second, what is the level of the language. And then you people can judge. नहीं सर, टॉपिक ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ और लैंग्वेज भी कॉम्प्रहेंसिबल है, तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट पैसेज. अदरवाइज स्टूडेंट्स, हम लोग दूसरा पैसेज कैट में ले सकते हैं. वैसे भी आपको कैट में बीआरसी का पूरा पैटर्न अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टूडेंट्स मैं उसको सम अप करके then I'll come on the questions. Now, if I talk about the VRC section, okay, this complete section is reading oriented. तो कैट में कहीं पर भी ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस वी पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट. तो स्टूडेंट थिंक्स दैट कैट के लिए मुझे बहुत ग्रामर पढ़नी है, नॉट एट ऑल. यस, फॉर ओमेट्स इट इज इंपॉर्टेंट. ओमेट्स का मतलब है ये अदर एग्जाम्स लाइक ज़ैट, सीमैट, इनमैट एंड स्नैप. बट व्हेन आई टॉक अबाउट कैट, द VRC section of CAT is completely reading oriented. So students, you will have 40 questions. 40 minutes, and 24 questions. Out of 24 questions, पिछले 5-6 years से जो पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, I'm actually talking about that. हो सकता है 2026 में कुछ माइनर चेंजेस हो जाए. जैसे 2019 के पहले कैट का पूरा पेपर 3 घंटे का होता था एंड 60 मिनट्स का टाइम मिलता था VRC का पूरा सेक्शन करने के लिए. एंड उन 60 मिनट्स में we were supposed to solve 34 questions. But now you people get 40 minutes and 24 questions. So
16 questions based on reading comprehension. So 4 sets of passages, and on each passage you will have 4 questions. Okay, so 16 questions will be based on RC. अब आप सोचो कितना बड़ा वेटेज है। आपको स्टूडेंट कहे कि सर मैं रीडिंग को अवॉइड करके कैट निकाल लूँ, इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल. The people do understand 16 questions, 4 passages. Each passage will have a set of 4 questions. And 8 questions will be based on verbal ability. So when I talk about verbal ability, there are 3-4 common patterns. One is para formation, जिसे हम लोग कहते हैं jumbled paragraph. So when I talk about para formation, 4 sentences are given to us and we need to arrange them to make a logical paragraph. Second is sentence elimination. 5 sentences are given to us. Among them, 4 sentences will make a logical paragraph, but 1 sentence will not belong to that group. So we need to identify that odd sentence, and this becomes the second pattern of verbal ability. Third, para completion, where a paragraph is given to us with 4 blanks and 1 sentence is there. We need to find out this sentence will fit in which particular blank. So we need to complete that paragraph. And fourth is para summary, where a small paragraph is given to us around 100, 120, 130 words. And students, we need to find out among the 4 options which option best captures the essence of the paragraph. So we need to find out the best option. We need to find out the summary of that, which option best captures the essence of that paragraph. And needless to say, the options will be quite confusing. So correct answer देना बड़ा challenging हो जाता है. So these are the common patterns of verbal ability. हर एक के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चंस इन टोटल. अब 40 मिनट्स में स्टूडेंट्स हमें टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना है कि हम लोग, जिन बच्चों की रीडिंग बहुत अच्छी होती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ आप लोग कोशिश करें 24 में से 17, 18, 19 अटेम्प्ट्स कर लें. जिन बच्चों की रीडिंग थोड़ी सी कमजोर है, कोशिश करें 12, 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए. तो थोड़े और वीक हैं, एटलीस्ट 8, 9, 10 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं. और एक्यूरेसी स्टूडेंट्स हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अगर हम लोग 17, 18, 19 अटेम्प्ट करते हैं विथ ऑलमोस्ट 85% एक्यूरेसी, तो मान के चलें यू पीपल विल फेच 99 परसेंटाइल प्लस. और जो बच्चे 12, 13, 14 क्वेश्चन करेंगे विथ ऑलमोस्ट 85% एक्यूरेसी, 80-85% एक्यूरेसी आरसी में एक डिसेंट मानी जाती है. तो विथ 80-85% एक्यूरेसी तो मान के चलें आपका परसेंटाइल आराम से 96-97 परसेंटाइल की रेंज में पहुंच जाएगा. और जो बच्चे रीडिंग में थोड़े से वीक हैं, अगर मान लो, हालांकि अभी तो आपके पास इतना टाइम है, यू पीपल कैन इंप्रूव एंड रीच टू एनी हाइट, बट स्टिल इफ यू फील लाइक सर रीडिंग इज नॉट माय फोर्टे, कोशिश करो कम से कम 9-10 क्वेश्चन कर लें, उसमें से 7 या 8 सही हो जाए, तो भी स्टूडेंट्स यू पीपल कैन क्रॉस अराउंड 88-90 परसेंटाइल. यस, इन सब पर मैं और डिटेल्स देता रहूंगा, बट ये पहला लेक्चर है और मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट लेक्चर में यू गेट अ कंप्लीट ओवरव्यू के पैसेजेस हमें कैसे सॉल्व करने हैं. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ स्मॉल पैराग्राफ, सो दिस बिकम्स अ स्मॉल paragraph and one question is based on that. So you need to find out the title of the passage. Okay, so among the 4 options, you need to find out the title of the passage. जो बच्चे इस पूरे लेक्चर को बाद में वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट अपने जितने दोस्त हैं उन सब तक ये पहुंचा दो. एंड इस क्वेश्चन को सबसे पहले पॉज करके थिंक व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. Yes. Shall I discuss now? Okay, done. चलिए, now you people understand. I think मैं जब इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूं तो उन सबके आंसर्स के बेसिस पर I can say possibly students generally get confused between the third option and the fourth option. Passage I don't think so कि बहुत ज़्यादा टफ है. आपके लैंग्वेज भी सिंपल है और टॉपिक भी वेरी सिंपल है. So we need to ultimately find out what is the main purpose of writing the passage, whether to discuss about students and politicians or to talk about indiscipline and students. So students, इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो you will come to know in the first paragraph the author says, whatever is happening in the society, a student cannot remain deaf and blind. A student has all his rights to raise his voice. But author कहता है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी आवाज उठाता है, that is not indiscipline.
बट यस, अगर कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर वायलेंस करता है तो यस, इट इज इनडिसिप्लिन। तो स्टूडेंट्स अगर वायलेंट एजिटेशंस करता है, एजिटेशंस आप लोग समझते हैं, प्रदर्शन करना, रोड पर उतर जाना, सरकार के खिलाफ नारे लगाना, तो अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर स्टूडेंट वायलेंट एजिटेशन करता है तो ऑथर सेज दैट यस, इट इज इनडिसिप्लिन। सेकंड पैराग्राफ में the author says, in some cases, however, students alone are not responsible for indiscipline. Our school, college committees, and university bodies have become hotbeds of politics. Most of the members of these committees are politicians, and they have to take the help of both the students and the teachers alike to gain their ends. There are again teacher politicians too. They all encourage indiscipline among students. So, this type of indiscipline can go only when politicians quit these temples of learning. So, in the second paragraph, the author says that only students are not responsible for indiscipline. So politicians, teacher politicians are also responsible. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि यस, पॉलिटिशियंस पर यहां पर बहुत रेफरेंस दे रखा है, पॉलिटिशियंस को भी हमने बहुत डिस्कस किया। बट इफ आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस पैसेज? क्या इस पैसेज का स्टूडेंट्स मेन पर्पस ये है टू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस और टू टॉक अबाउट what is indiscipline and who is responsible for this indiscipline? I think the main purpose is to talk about indiscipline, and while discussing indiscipline and while fixing the responsibility of indiscipline, we have discussed politicians. So students, the main purpose is indiscipline, and therefore, and second, the passage anyway talks about students. So दो important keywords हैं, indiscipline and students. तो यहाँ पर best answer होगा indiscipline among students. सेकेंड ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज वहां पर स्टूडेंट्स वर्ड नहीं दे रखा है, एंड थर्ड में स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, एंड वन तो इतना जेनेरिक है कि व्हेन आई से स्टूडेंट्स टुडे तो हो सकता है इस टाइटल पर तो मैं किसी भी डायरेक्शन में लिख दूं, इसीलिए स्टूडेंट्स हमेशा हेडिंग ऐसी होनी चाहिए रीडर को पढ़ते ही पता चल जाए कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज एंड पॉसिबली व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ द पैसेज। हम जब भी न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, हाउ डू वी डिसाइड दैट व्हिच पर्टिकुलर न्यूज़ वी वांट टू रीड? प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द हेडलाइंस, इजंट इट? आप सोचो हेडलाइंस कुछ और है, अंदर का कंटेंट कुछ और है, तो हमारे लिए कितना डिसोरिएंटिंग हो जाएगा। इसलिए रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो टाइटल है वो बहुत ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रॉड भी नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट। ओके, चलिए, वंडरफुल। एंड नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट एक छोटा सा पैराग्राफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो एनीवे स्टूडेंट्स, आई गेस इनफ टाइम हो चुका है, लगभग कितने 40-45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, आई गेस यस 42 मिनट्स हो चुके हैं। चलो एक काम करते हैं, इस पूरे पैसेज को अपन डिस्कस कर ही लेते हैं, सिंपल सा पैसेज है। ओके, एंड आई वांट टू सी दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एक बार पॉज करके आप खुद समझो और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ दिस पैसेज। एनीवे स्टूडेंट्स, ये जो पैसेजेस हैं ये कैट के लिए बेंचमार्क नहीं है, ये सब बिगिनिंग लेवल के पैसेजेस हैं। ओके, सोचो मैं सीधा कैट लेवल का लेकर आता तो क्या होता, बच्चे पहले ही दिन घबरा जाते हैं, तो ये धीरे धीरे मैं आपको लेवल पर लेकर आऊंगा। चलो एवरीवन, pause it, go through it, and just listen to my explanation. बात करें। यस, अगर आपने इस पूरे पैसेज को पढ़ा है तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? यस, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ you people should be able to understand the passage. Okay, that is important. और जब तक आपको वो पूरी स्टोरी, if you are not able to visualize, okay, read it second time. और कई बार आप देखोगे जब हम सेकंड टाइम पढ़ते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। खूब पेशेंस रखो, अंडरस्टैंड, जल्दबाजी में मत पढ़ो, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ो। ओके, मैं समझाऊं? डन। सिंपल सा पैसेज है। So it was during one of the most dreadful smallpox epidemic. Yes, epidemic. If I ask a question to you people, one word is epidemic, second word is pandemic, and third word is endemic. Yes. इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स हमें वोकैबुलरी साथ में डेवलप करते हुए चलना है। तो आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू, एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड एंडेमिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? यस, यस, ये तीनों
बीमारी के लिए वर्ड यूज होता है, एक समथिंग जो स्प्रेड हो जाए, अंडरस्टैंड, बट स्टिल देयर इज अ स्पेसिफिक एंड टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। एक अच्छा इंग्लिश का स्टूडेंट इन डिफरेंसेस को जरूर समझता है, अंडरस्टैंड। तो व्हेन आई टॉक अबाउट एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब ऐसी कोई बीमारी विच स्प्रेड्स इन अ लिमिटेड एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिजीज है जो एक देश में फैल जाए, 3-4 शहरों में फैल जाए, तो स्टूडेंट्स व्हेन इट स्प्रेड्स इन अ लिमिटेड एरिया, so that becomes an epidemic. When it spreads globally, everywhere, almost, it becomes a pandemic. तो पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? समथिंग which spreads globally. Understand? Pandemic. And you people do understand the origin of the word as well. Pan. What is the meaning of pan? Pan का मतलब होता है all. And students demos. Demos actually becomes a root word for people. Demos. इसीलिए तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी में किसका रूल होता है? पीपल्स रूल, अंडरस्टैंड। तो पैन का मतलब ऑल है और डेमोस का मतलब पीपल, तो जो सभी लोगों में फैल जाए उसे अपन कहते हैं पैंडेमिक, अंडरस्टैंड। एंडेमिक का मतलब है व्हेन द पैंडेमिक कम्स इन कंट्रोल। पैंडेमिक इतना कंट्रोल में आ जाता है कि द एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम कैन मैनेज इट। अब स्टूडेंट बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड was once a pandemic, but now even if some cases are coming, but our existing healthcare system is able to handle it, so there is no need to panic now. So this becomes endemic. So when pandemic comes in control, though it is there, but still there is no situation of panic now. So such a disease, such a state is known as endemic. So epidemic, pandemic or endemic. तो यूके में स्टूडेंट्स एक बार एक बीमारी फैल गई, स्मॉल पॉक्स, ओके, इन इंग्लैंड। एंड डॉक्टर एडवर्ड जेनर, पॉसिबली आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, अ कंट्री डॉक्टर। कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंट्री डॉक्टर? कंट्री डॉक्टर का मतलब होता है जो, मतलब मैं कभी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कंट्री डॉक्टर, स्टूडेंट से पूरे देश का डॉक्टर। अरे भाई, पूरे देश का डॉक्टर नहीं, कंट्री डॉक्टर का मतलब होता है रूरल एरियाज में काम करने वाला। आपके तो समवन हु वर्क्स इन विलेजेस, तो इसको अपन कहते हैं कंट्री डॉक्टर। अच्छा, यू पीपल डू अंडरस्टैंड व्हेन आई से आई एम गोइंग टू कंट्री साइड, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? अगर मैं खेतों में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो इसको अपन कहते हैं कंट्री साइड। ओके, so he was a country doctor, made a discovery which was to alter the course of history. Jenner noticed that the disease, कौन सी बीमारी है? Smallpox, seldom struck. What is the meaning of seldom? अब देखो, इन वर्ड्स के मीनिंग्स अगर नहीं पता है तो पॉसिबली वी मे कमिट अ मिस्टेक। सेल्डम का मतलब होता है बहुत रेयरली, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, अंडरस्टैंड, ऑलमोस्ट नेवर। तो सेल्डम बेसिकली स्टैंड्स फॉर रेयरली, ओके, अंडरस्टैंड। Disease seldom struck those who lived in rural areas and worked around cattle. Most farmers and dairy workers had contracted cowpox. अब एक और बीमारी है जिसका नाम है cowpox, and had recovered with nothing more serious than a pustule which left a scar. अब ये जो cowpox है ना, ये बहुत डेंजरस नहीं है। इसमें छोटा सा एक पुस्ट्यूल बनता है और उसके बाद एक निशान रह जाता है, बस दैट्स इट। पुस्ट्यूल का मतलब एक छोटी सी फुंसी हो जाना, अंडरस्टैंड, which left a scar. This observation, now see you people try to understand. इंग्लैंड में एक बीमारी फैल गई, स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर एडवर्ड जेनर वाज अ कंट्री डॉक्टर। इन्होंने देखा कि जो लोग गांव में रहते हैं, स्पेशली कैटल के आसपास, इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो ही वाज सरप्राइज्ड, व्हाई? उसने नोटिस किया कि इन लोगों को एक दूसरी बीमारी होती है जिसका नाम है काउ पॉक्स, एंड दैट इज नॉट मच डेडली, छोटा सा पुस्ट्यूल एंड स्कार, बस दैट्स इट। बट इन लोगों को फ्यूचर में फिर कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। And because of this, okay, he thought of an experiment. He took a healthy boy. अब उस healthy boy की बॉडी में सबसे पहले काउपॉक्स का मैटर इंजेक्ट किया और देखा उस बॉय की बॉडी पर कोई सिम्टम्स ही नहीं आया। सॉरी, काउपॉक्स का मैटर इंजेक्ट किया और देखा उस बॉय की बॉडी पर एक छोटा सा पुस्टूल बना, जो कि काउपॉक्स का एक नॉर्मल सा सिम्टम है, एंड हील हो गया, अंडरस्टैंड। आफ्टर अ फ्यू वीक्स उसी बॉय की बॉडी में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का मैटर इंजेक्ट किया, स्मॉल पॉक्स के वायरस इंजेक्ट किए।
सरप्राइजिंगली कोई सिम्टम्स नहीं आए। तो यहाँ से डॉक्टर एडवर्ड जेनर को समझ में आया कि अगर हम किसी हेल्दी बॉडी में काउपॉक्स का मैटर इंजेक्ट करें तो बॉडी डेवलप्स एक्टिव इम्यूनिटी एंड दैट इम्यूनिटी helps in fighting smallpox also. And by this becomes the first vaccine of the world. And students, the very first vaccine was developed by Dr. Edward Jenner for smallpox. And therefore, he is known as father of vaccination. You people do understand, अब तो पिछले 150 years में ऑलमोस्ट हर बीमारी के लिए वैक्सीन है। और किसी भी वैक्सीन में स्टूडेंट्स होता क्या है, उसी बीमारी के वायरस लिमिटेड क्वांटिटी में हमारी बॉडी में उन जर्म्स को इंजेक्ट कर देते हैं। तो हमारी बॉडी को पहले से पता चल जाता है हाउ टू प्रिपेयर द एंटीबॉडीज एंड हाउ टू फाइट सच बैक्टीरिया, सच वायरसेस, सच पैथोजेंस। एंड दैट इज द रीजन व्हेन द बॉडी इज ऑलरेडी रेडी, जब एक्चुअल में अटैक होता है तो स्टूडेंट्स बॉडी बहुत अच्छी तरह से फाइट कर पाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें कोई सिम्टम्स नहीं आते एंड देयर इज नो डेंजर टू अस। द सेम थिंग हैपेंड इन केस ऑफ कोविड एज वेल। So you people do understand, ये थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है we need to understand. Even students for CAT also, because CAT में मैंने कहा ना, CAT RC कभी साइंस की क्लास होगी, कहीं इकोनॉमी की क्लास होगी, कभी स्टूडेंट्स हम लोग साइंस में RC में साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। So you people do understand that it is not only a class of English, these are classes on various topics basically. तो अगर इतना पता है तो well and good. अब स्टूडेंट्स मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया था, पॉसिबली आपने नोटिस किया हो, pathogens. So what is the meaning of pathogen? Pathogen का मतलब होता है such microorganisms, okay, जो हमें बीमारी देते हैं, जो हमें डिजीज देते हैं, अंडरस्टैंड, जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं। पैथो का मतलब ही डिजीज, एंड जेन का मतलब जीन। तो सच वायरसेस, बैक्टीरिया आपके जो बीमारी फैलाते हैं उनको अपन कहते हैं पैथोजेंस। So you people do understand. Dr. Edward Jenner, after that he came to London. He explained the same treatment to many of his co-doctors, co-colleagues and all. But एक सब ने सबसे पहले रिडिकुल किया, रिडिकुलस। कोई जल्दी से एक्सेप्ट थोड़ी करता है, एकदम नया मैकेनिज्म, तो लोगों ने रिडिकुल किया। क्या ये कौन सा तरीका है कि आप उस बीमारी के जर्म्स को ही बॉडी में डाल दो? बट एनीवे स्टूडेंट्स, देखिए, दिस वाज अ पावरफुल आइडिया। Finally, people started accepting this, and vaccination became a drive across the world now. So this is how the first vaccine was developed, and this is the complete story which is given in this passage. I do understand, ये passage बहुत easy था और जो questions हैं वो भी बहुत direct हैं, but students मैं फिर भी जानता हूँ कि कई सारे बच्चों ने story को गलत समझा होगा। तो बस आप सिर्फ इतना सा compare करो कि जो तुमने समझा, जो सर ने समझाया, क्या ये दोनों बातें one and the same है? और इनके स्टूडेंट्स अगर कोई गैप है, बस उस गैप को हमको फिनिश करना है, ठीक है? डन? ओके, अब इस पैसेज को वापस से पढ़ना एंड यू विल बी क्लियर अबाउट व्हाट एक्चुअली सर वांटेड टू से। ओके, चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक यू पीपल वुड हैव सॉल्व्ड इट। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आई वांट यू पीपल टू पॉज इट, solve first and then listen to the explanation. Okay, shall I give the answer now? So question number 1, the correct answer is third option, and question number 2 also, the correct answer is third option. Okay, he noticed that the disease seldom struck people who worked around the cattle, and Dr. Jenner was successful as cowpox virus produces a mild infection, because cowpox जो है ना, ये बहुत deadly नहीं है, understand? So it produces a mild infection in humans, which is enough to produce active immunity, understand? And that immunity helps to fight even smallpox. So this is how the process continues. And here comes one last question which is based on this passage, and you people have to find out which is the correct answer, the writing style of the passage. Yes, come on, everyone. चलो मैं आपको बता देता हूँ इन चारों के मीनिंग्स क्या होते हैं। इडियोमैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स जस्ट लाइक एन इडियम। आप लोगों ने देखा होगा इडियम में तो कुछ और होता है, पर सेंस कुछ और होता है। So when I say Rome was not built in a day, my purpose is not to talk about Rome. Even if I am talking about Rome, मैं कुछ और मैसेज देना चाहता हूँ। तो अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, सर 10 दिन हो गए, my English is not improving, and if I say Rome was not built in a day, I need to say that have patience. रोम शहर को एक दिन में थोड़ी बना था,
So anyway, students, I want to say you have patience. So this becomes an idiom. अगर मैं किसी पैसेज में लिखता कुछ और हूँ और उसका सेंस कुछ और है, ठीक है, this becomes idiomatic. So anyway, students, fourth option is not the correct answer here. Coming on the third one, provocative. Provoke करना, किसी को instigate करना, किसी को stir करना, है ना, किसी को भड़काना, understand. तो कई बार ऐसे भी पैसेजेस होते हैं जिसका पर्पस होता है पब्लिक को गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना. But anyway, the stone is also not correct. Third is analytic. Second option is analytic. Analytical style का मतलब होता है स्टूडेंट्स बिल्कुल एक न्यूट्रल एनालिसिस देना. जैसे फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट has delivered any particular judgment. So if I write an essay on that, and if I talk about the pros and cons of that judgment, if I talk about what were the possible reasons for the judgment and what can be the possible implications of that, तो अगर मैं न्यूट्रल एनालिसिस करता हूँ, so this becomes analytical. And first is narrative. Narrative style का मतलब just like telling a story. Once there was a crow, it was thirsty, it was wandering here and there. So whatever happened, बिना किसी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लैंग्वेज को यूज़ किए, straight away मैं बताता हूँ कि what actually happened. So this becomes a narrative style. Narrative style is just like telling a story. So if I talk about this passage, the correct answer is narrative style because I'm just talking about there was a doctor, he observed that, he thought of this experiment, that was the result of the experiment, eventually this happened. So what I'm doing, whatever happened, I'm just presenting that as it is. So this style becomes narrative style, isn't it? Yes, absolutely. So this is narrative. ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से you people have to keep developing your reading skills. So I believe that this was the very first lecture. अभी काफी कुछ बताना बाकी है स्टूडेंट्स, ये तो केवल एक शुरुआत है. But I think this was a very good beginning. I have immense satisfaction of delivering value in the last almost 50-55 minutes या almost 60 minutes की क्लास हो चुकी है. तो yes, बहुत ही insightful और मुझे बहुत satisfaction है कि मैंने इस पूरी क्लास के साथ जस्टिस किया. जो भी बच्चा इस पूरी क्लास को देखेगा, कम से कम आपको लगेगा कि बिल्कुल वैल्यू एडिटिव क्लास थी, बहुत कुछ सीखने को मिला. बस दिस इज AceCat and this is our intention. Okay, so thank you, and if you people have got any questions, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. And moreover, if you have any doubt pertaining to what I have discussed, वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें. Okay, our team and I myself will give the answers to your questions. Okay. चलिए, so by this the session gets over. Thank you very much. You people were अब ठीक है वर्चुअल है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा अगर यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है तो you people were lovely audience, and please ensure that अपने जूनियर्स को and अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं वहाँ तक AceCat को पहुँचाओ. वो भी आपको दुआ देंगे. एक बहुत अच्छे चैनल के साथ आपने उनको कनेक्ट किया. तो see you in our courses. Thank you so much.